वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्क प्रभोश्च प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण ये यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। 10મા અધ્યાય સુધી ભગવાને અર્જુનને ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો। અર્જુને વિનંતી કરી કે મહારાજ તમારું કહેવું મને સાચે સાચું લાગી ગયું છે, પણ મારા ઉપર તમારી બહુ દયા છે એમ તમે કહો છો તો એ મને નજરો નજર દેખાડો તો મને ગળે બહુ ઘૂંટડો ઉતરી જાય। એટલે ભગવાને વિશ્વરૂપ ધારણ કરી અને અર્જુનને દેખાડ્યું છે કે તું તો નિમિત્ત માત્ર છો, આ બધી રચના મારી છે। ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં અર્જુને શું જોયું? વ્યાસજીએ સુંદર મર્મ સહિત એનું વર્ણન કર્યું છે કે ભગવાનને 1000 હાથ, 1000 પગ, 1000 માથા, હજારો કાન અને હજારો ઉદર, પણ એમાં ક્યાંય એવું લખ્યું નથી કે ભગવાનના મન 1000, ભગવાનના હૃદય 1000, એમ ક્યાંય લખ્યું નથી। હૃદય તો એક જ હોય છે। આજે આપણે આપણો દેશ એક એવા કાળમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે કે સીમાડા પર આજે લડાઈના નગારા વાગી રહ્યા છે। હિમાલયની કંદરામાંથી ભયંકર અવાજ આવી રહ્યા છે। આ દેશના રક્ષણને માટે સદભાગ્ય આજે વાદના તંત મેલી દઈ મનના નિશ્ચયના વાદ મૂકી અને સમસ્ત દેશ આગે જાગ્યો છે। પણ આ જે લડાઈ આવી રહી છે એ લડાઈ ચમકતી તરવારોની નથી, સુરવીરો સામસામા મળે ને કટારે ને ભાલે ને બરછીએ ઘા કરે એની નથી। આ લડાઈ તો પવન જેટલી વ્યાપક છે અને એ તો ઘરો ઘરની લડાઈ છે। આજે આપણા ખેતરમાં લડાઈ છે, આજે આપણી બજારોમાં લડાઈ છે, આજે આપણી શેરીઓમાં લડાઈ છે, આજે આપણા હંચાઓમાં, યંત્રોમાં, કારખાનાઓમાં, મજૂરોમાં, કવિઓમાં, પંડિતોમાં તમામ ઠેકાણે એક જાતની લડાઈ લડી રહી છે। કહેશો કે શું? પણ એક સૈનિક જ્યારે રણક્ષેત્રના મોખરા ઉપર લડવા જાય છે એની પાછળ ઓછામાં ઓછા 15 થી 20 માણસો જ્યારે પરિશ્રમ કરે છે ત્યારે એ આગળ વધી શકે છે। એમ આજે આપણા લાખો ભાઈઓ, લાખો બેટાઓ ઉત્તરની સરહદ પર હિમાલયના માથા ઉપર પગ માંડી 10-10, 15-15 હજારની ફીટની ઊંચાઈએ લડી રહ્યા છે। એને મદદ કરવાને માટે આપણી શું ફરજ છે? પ્રથમ ફરજ છે ખેડૂતોની, કિસાનોની, અને એ ચતુર કિસાનોની ફરજ છે। રામાયણમાં એક ચોપાઈ છે કે કૃષિ નિરાવહી ચતુર કિસાના જીમી બુદ્ધ તજહી મોહ ગણનાના। ખેડૂતની એ ફરજ છે કે આપણે અન્નને માટે પરાવલંબી ન રહીએ, એમ બમણી મહેનત કરી અને અન્નનું ઉત્પાદન વધારે। મિલ માલિકો અને હંચાવવાળા મોટા મોટા કારખાનાવાળાઓની એ ફરજ છે કે બમણો માલ ઉત્પન્ન કરે કે જ્યાં આપણી લડાઈ ચાલી રહી છે એને કામમાં આવે, શસ્ત્ર સરંજામ ઉત્પન્ન કરે, વાહનો ઉત્પન્ન કરે અને વસ્ત્રો ઉત્પન્ન કરે। તો એક નાનામાં નાના મજૂરની શું ફરજ છે કે પોતે પોતાનો બમણો પરિશ્રમ કરે, બમણો પરિશ્રમ કરી અને જ્યાં પોતે કામ કરતો હોય ત્યાં
બમણો ઉત્પન્ન કરી આપે. બહેનોની ફરજ છે કે એ ઘરની અંદર કરકસર કરે, અનાજ બચાવે, થતા ખર્ચો બચાવે. સમસ્ત માનવીઓની, હિન્દીઓની આજે એ ફરજ છે કે મોટા મોટા વરા, વિવાહ એ બધા ખર્ચો બચાવી લે અને બચત જે વસ્તુ થાય તે સીમાડે આપણા કાળના જડબામાં જે ધકેલાઈ ગયા છે એવા સૈનિકો અને જુવાનોને મદદ કરે. આજે ખેડૂત, મજૂર, કારખાનાવાળા, શિક્ષક વર્ગ, મજૂર વર્ગ સર્વ કોઈને માથે આ ધીંગાણાની ફરજ આવી પડી છે. તારે દેશના કલાકારો અને કવિઓને કંઈ ફરજ ખરી કે કેમ કવિઓને ફરજ ન હોય? કોઈ પણ સારા કે માઠા જમાનાનું આગમન એ કવિઓના મસ્તકને પહેલું અડે છે. કવિઓને તો મોટામાં મોટી ફરજ છે. આજે સાચો કવિ, આજે સાચો હિન્દી કવિ આ ધીંગાણાની અને આ માતૃભૂમિની હાંકલ લઈ, હાથમાં લઈ અને એ ગામડે ગામડે ફરે, એ સુરાતનના ગીત ગાય, એ સુરવીરતાનો પ્રસાર પોતે જે જે દેશમાં હોય, જ્યાં જ્યાં પહોંચી શકતો હોય ત્યાં કરે. હવે આ ફરજ કવિઓની મને પણ લાગુ પડે છે. સૌરાષ્ટ્રનો હું પણ નાનકડો એવો એક કવિ છું. જન્મે જાતે અને સંસ્કારે ચારણ છું. એટલે મેં પણ ચાલેલી અત્યારની ચાલતી પરિસ્થિતિને અંગે એક નાનું એવું કાવ્ય લખી અને રાષ્ટ્રના ચરણમાં અર્પણ કરું છું. એ ગીત ચારણી ભાષાનું અને હિન્દી ભાષાનું મિશ્રિત છે. એમનો ઢાળ ભુજંગી છંદનો છે. પહેલો એક દોહો છે અને પછીથી બે છપ્પઈ છે. હરિ કપટ યુદ્ધ આયો પુરવઈ, જહાં લોકશાही की लाज, पण रखन सुर हिंदिन का ऐ वो तो उमड़ा सागर आज. ते हिमालय के अंदर धसेंगे जो मंदर, महामाय का पूत लाखों धसेंगे. हिमालय के अंदर धसे जो समंदर, ए महामाय का पूत लाखों धसेंगे. ते दजे मोह ममता प्रगट जो दलत तारी पूसे न डरता, खता कौन न खाता. गिरी घाट ngौ घटंगती शीत लटपट गिरे, हिम झटपट झपट दौरी जाता. विकट संग ngटपट चढ़े दौर नट, झटका रे दंत कट कट सुभट तन कसे गे. आज हिमालय के अंदर धसे जो समंदर, महामाय के पूत लाखों ऐ दसे गे. महामाय के पूत लाखों दसे गे. हिमालय के अंदर दसे जो समंदर, महामाय का पूत लाखों दसेंगे. बजे तूर त्रंबक चले तेग चकमक, लगी गौर धकमक बकारे ngरी सांजरे नैन चकमक. वपु रौद्र टक टक मचे जुद्ध, धकमक लगे मन परिसों. धरांगोती दम दम नुपुर रंब ठम ठम, बजे डाक डम डम भुचंडी ngसे गे. आज हिमालय के अंदर धसे जो समंदर, महामाय के पूत लाखों दसेंगे. आओ पिया दूध माँ का उज्जवल भारती का, सहे मरण धक्का वो पक्का जुआनो. शलभ ब्रंद जूटा जीवन दौर टूटा, परों लग बछूटा तरन धारी प्राणों. उठे हिंद शक्ति जनेता की भक्ति जगे सूर, सत्य जुबी छू डसे गे. ए हिमालय के अंदर धसे जो समंदर, महामाय के पूत लाखों दसेंगे. हिमालय के अंदर धसे जो समंदर. ए छवि भीम की है कि हनुमान की है, नहीं भीष्म की है न अभिमन्यु की है, कुरुक्षेत्र की है महालंक की है. प्रलय काल की फूंक आवृत्ति की है, सुरासुर की काल के पूर की है कि हजूर की है. कमट कसम से है हिमालय के अंदर धसे जो समंदर, महामाय का पूत
लाखों दसे हिमालय के अंदर दसे जो समंदर महामाय के पूत लाखों दसे के महामाय के पूत लाखों दसेंगे महामाय के पूत लाखों दसेंगे। आज भाई धरनी लालंग श्रोनित गुलालंग देखो हिंद का लाल होली रमे है। भाई धरनी लालंग यो श्रोनित गुलालंग देखो हिंद का लाल होली रमे है। उड़े पिचकारी नहीं मुख गारी करे की लकारी धारा धम धमे गए गगन होत गढ़ हर बह नाली हर हर वहां हिंद का सूर सन्मुख दसे के गगन होत गढ़ हर बह नाली हर हर वहां हिंद का सूर सन्मुख दसे के। हिमालय के अंदर दसे जो समंदर महामाय का पूत लाखों दसेंगे ओ महामाय का पूत लाखों दसे के। हिमालय के अंदर दसे जो समंदर महामाय का पूत लाखों दसेंगे। रिपु फौज थर थर नजर ज्वाल जर्जर कहे मुख घर घर बतर युद्ध में गए चले विकट गोला विविध अस्त्र बरसे हृदय शूर नर से सबे शुद्ध में गए चले विविध गोला विविध अस्त्र बरसे हृदय शूर घर से सबे शुद्धि में गए धरे पाव सरहद चढ़ोंग रणमद खड़े हिंद रुक हद मिली रन हंसेंगे मिली रन हंसेंगे। हिमालय के अंदर धसे जो समंदर महामाय का पूत लाखों दसेंगे महामाय का पूत लाखों दसेंगे। करे वेरी छल बल कपट जाल पल पल चलावे सुंगकल बेटा हिंद का है। छुटे गोली छन छन विकट घन मसन गन लड़ेंगर पितन तन जीवन हिंद का है। छुटे गोली छन छन विकट घन मिशन गन लड़ेंगर पितन तन जीवन हिंद का है। जीवन हिंद का है शरीर हिंद का है विजय हिंद का है सुबट वील से है। हिमालय के अंदर दसे जो समंदर महामाय का पूत लाखों दसेंगे। हिमालय के अंदर दसे जो समंदर महामाय का पूत लाखों दसेंगे। हिमालय के अंदर दसे जो समंदर महामाय का पूत लाखों दसेंगे। तो कहे भाई भाई रिपु दुखदाई नहीं है सगाई वो विश्वास घाती। पहले कहे भाई भाई रिपु दुखदाई नहीं है सगाई वो विश्वास घाती। पण भुजा हिंद बल है मगज में अकल है हृदय नाही चल है हरि से संगाती। भुजा हिंद बल है मगज में अकल है हृदय नाही चल है हरि के संगाती। तो कहे कागचारन जहां सत की धारण गीता का उच्चारण विजय वहां वसेंगे। गीता का उच्चारण विजय वहां वसेंगे। हिमालय के अंदर धसो जो समंदर महामाय का पूत लाखों दसेंगे। हिमालय के अंदर धसे जो समंदर आज महामाय का पूत लाखों दसेंगे। छप्पई धरनी हिंद धस्म से हाक पो द्रव दिश लगी मन मन का मत भेद बिसरी घर घर सुर जगी। अंग बीज रस चमक दमक नैनों में ज्वाला सरहद रक्षण का दसे जन काल कराला। कह काग प्रीति घर बार की बिसरी सुबट जब रन चले। ब्रह्मांड यंड यति स्तब्ध भो ममता माया कल मले तजी देख का नेक मात पितु सेव विषादी। तजी पुत्र का प्यार तजी अविवाहित नारी। तजी कंठ बरमाल तजी मंडप ससुरन का रखन हिंद की लाज लगे इकतार सुरन का। सत में ही हिंद का लाल हूं मंत्र हिंद का मुख पढ़े। कह का गंगाज जमदूत सा भारस जाया रन चढ़े। कह का गंगाज जमदूत सा भारत जाया रन चढ़े। कह का गंगाज जमदूत सा भारत जाया रन चढ़े। कह का गंगाज जमदूत का भारत जाया रन चढ़े। ने भिरे युद्ध चौतरफ। पहले मैंने कहा है कि ये युद्ध सीमा हद का युद्ध नहीं है, ये तो घर घर का युद्ध है। उसका छप्पई है बहरेंगे युद्ध चौतरफ। हिमालय गिरी में घर में यंत्र घरों में कवि वृंद मजदूर खेतर में व्यापारन में अधिक अन्न धन लह कसर में महिला मंडल पुरुष मुसाफरी सकल छत्र में। कह काग भूल मत भेद को हिम्मत ही नहीं हारी बो। जनता
सुजीवन ज्वाहर मिलिंगन युद्ध सकल मित जीत बो, युद्ध सकल मिल जीत बो। तीन वस्तु जब एक होती हैं तब युद्ध में विजय होता है। कौन कौन? जनता, सुजीवन, ज्वाहर मिली, अन युद्ध सकल बिति जीत बो। जय हिंद। आज जब अपने राष्ट्र पर आपत्ति आई हुई है तब प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी का एक विशेष धर्म होता है। ये धर्म है देश की रक्षा या रक्षा के लिए देश भर में जो प्रयास हो रहे हैं उसमें यथाशक्ति मदद का। ये हमारा सद्भाग्य है कि देश की रक्षा के लिए देश का हर नौजवान तैयार हुआ है। वेद व्यास जी ने गीता में भगवान का विराट स्वरूप का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। विश्व स्वरूप में भगवान के सहस्त्र हाथ, सहस्त्र पैर, सहस्त्र मस्तिष्क, सहस्त्र लोचन आदि का वर्णन है, लेकिन कहीं ये नहीं बतलाया कि भगवान के हृदय या मन सहस्त्र है, वो तो सिर्फ एक ही रहता है। इसी भांति हमारे देश की रक्षा के लिए करोड़ों नर नारियां तैयार हुए हैं, पर इन सब का निश्चय एक ही है, दुश्मनों को हमारी सरहदों से मार हटाने का। सबकी मंजिल एक ही है, देश में संपूर्ण शांति और आबादी। आज सारा देश और देश के भिन्न भिन्न पक्ष एक बनकर चीनी हमलाखोर का अडिग सामना करने को कटिबद्ध हुए हैं। हमें श्रद्धा है कि आखिरी विजय हमारी ही होगी। सत्य सदा ही विजयवंत है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकेगी, लेकिन हमारा ये युद्ध सिर्फ उत्तरीय मोर्चा पर ही नहीं, ये तो घर घर का युद्ध है। भारत का एक सैनिक मोर्चा पर लड़ता है तो उसके पीछे कम से कम 15-20 व्यक्ति परिश्रम करती है, तब वो जवान आगे बढ़ता है। अगर जवानों का धर्म है बंदूक लेकर लड़ना, तो किसानों का भी धर्म है खेत में अधिक अन्न उत्पन्न करना। चतुर किसानों का यही धर्म है। रामायण में भी लिखा है तुलसीदास जी ने कि कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोघ गणनाना। तो किसानों का भी धर्म है खेत में अधिक अन्न उत्पन्न करना। कामदार को चाहिए वो अपनी पैदावार बढ़ाएं और मजदूरों को चाहिए कि वह अधिक श्रम करें। इसी तरह व्यापारी का धर्म है, शिक्षक का धर्म है, हमारी बहनों का भी धर्म है। तो प्रश्न यह उठता है कि कलाकार का और कवि का भी आज की परिस्थिति में कोई धर्म है या नहीं? क्यों नहीं? धर्म तो सबके लिए है। कवि का, कलाकार का धर्म तो विशेष रूप का है। प्राचीन युग में और पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो हमारे चारण कवि, बारोट आदि लोग उसमें सबसे आगे रहते थे और शूरवीरों को प्रेरणा देते थे। हम भी उसी कलाकार के वंश के हैं। आज हमारा धर्म है देश को जागृत करना, और जो लोग युद्ध के लिए, स्वार्पण के लिए कटिबद्ध हुए हैं उन सब की बिरदावली गाना। मैं भी सौराष्ट्र का एक छोटा सा कवि हूँ, जन्म जाति और प्रकृति से चारण हूँ, सरस्वती का उपासक हूँ। मैंने भी आज की परिस्थिति को लक्ष्य में लेकर एक छोटी सी कृति लिखी है जो सादर राष्ट्र के चरणों में समर्पित करता हूँ। यह चारणी छंद का एक प्रकार है और भुजंगी छंद का ही एक प्रकार है। प्रथम एक दोहा, बाद में भुजंग छंद और आखिर में छप्पई। हरि कपट युद्ध आयो पुरवई, जहां लोकशाही की लाज, पण रखन सुर हिंदिन का, ऐ वो तो उमड़ा सागर आज। ते हिमालय के अंदर धसेंगे जो मंदर, मखा माय का पूत लाखों धसेंगे। हिमालय के अंदर धसे जो समंदर, ए महामाय का पूत लाखों धसेंगे। ते तजे मोह ममता प्रगट जो दलता, रिपू से न डरता, खता कौन खाता।
गिरी घाट ngौ घटंगति शीत लटपट गिरे हिम झटपट झपट दौरी जाता विकट संग ngटपट चढ़े दौर नट झटका रे दंत कट कट सुभट तन कसे गे आज हिमालय के अंदर धसे जो समंदर मखमाय के पूत लाखों दसे गे मखमाय के पूत लाखों दसे गे हिमालय के अंदर दसे जो समंदर मखमाय का पूत लाखों दसेंगे बजे तूर त्रंबक चले तेग चकमक लगी गौर धकमक बकारे ngरी संजरे नैन चकमक वपु रौद्र टक टक मचे युद्ध धकमक लगे मन परिसों डरा मोती दम दम नुपुर रंब ठम ठम बजे डाक डम डम भुचंडी ngसे गे आज हिमालय के अंदर दसे जो समंदर मखम्बाय के पूत लाखों दसेंगे आओ पिया दूध माँ का उज्जवल भारती का सखै मरण धक्का वो पक्का जुवानों शलभ ब्रंद जूटा जीवन दौर टूटा परों लग बचूटा तरन धारी प्राणों उठे हिंद शक्ति जनेता की भक्ति जगे सूर सत्ती जुबी छूड से गे ए हिमालय के अंदर दसे जो समंदर मखमाय के पूत लाखों दसेंगे हिमालय के अंदर दसे जो समंदर ए छवि भीम की है कि हनुमान की है नहीं भीष्म की है अभिमन्यु की है कुरुक्षेत्र की है मखालंक की है प्रलय काल की फूंक आवृत्ति की है सुरासुर की काल के पूर की है कि हजूर की है कमट कसम से है हिमालय के अंदर धसे जो समंदर मखमाय का पूत लाखों दसेंगे हिमालय के अंदर दसे जो समंदर मखमाय के पूत लाखों दसेंगे मखमाय के पूत लाखों दसेंगे मखमाय के पूत लाखों दसेंगे आज भाई धरनी लालंग श्रोनित गुलालंग देखो हिंद का लाल होली रमे है भाई धरनी लालंग यो श्रोनित गुलालंग देखो हिंद का लाल होली रमे है उड़े पिचकारी नहीं मुख गारी करे की लकारी धारा धम धमे गए गगन होत गढ़ हड़ बह नाली हड़ हड़ वहां हिंद का सूर सन्मुख दसे के गगन होत गढ़ हड़ बह नाली हड़ हड़ वहां हिंद का सूर सन्मुख दसे के हिमालय के अंदर धसे जो समंदर मखमाय का पूत लाखों दसेंगे माय का पूत लाखों दसे के हिमालय के अंदर दसे जो समंदर मखमाय का पूत लाखों दसेंगे रिपु फौज थर थर नजर ज्वाल जर्जर कखे मुख घर घर बतर युद्ध में गए चले विकट गोला विविध अस्त्र बरसे हृदय शूर नर से सबे शुद्ध में गए चले विविध गोला विविध अस्त्र बरसे हृदय शूर घर से सबे शुद्धि में गए धरे पाव सरहद चढ़ोंग रणमद खड़े हिंद रुक हद मिली रन हंसेंगे मिली रन हंसेंगे हिमालय के अंदर धसे जो समंदर मखमाय का पूत लाखों दसेंगे मखमाय का पूत लाखों दसेंगे करे वेरी छल बल कपट जाल पल पल चलावे सुंगकल बेटा हिंद का है छुटे गोली छन छन विकट गन मसन गन लड़ेंगर पितन तन जीवन हिंद का है छुटे गोली छन छन विकट गन मिशन गन लड़ेंगर पितन तन जीवन हिंद का है जीवन हिंद का है शरीर हिंद का है विजय हिंद का है सुबट वील से है हिमालय के अंदर दसे जो समंदर मखमाय का पूत लाखों दसेंगे हिमालय के अंदर धसे जो समंदर मखमाय का पूत लाखों दसे गए हिमालय के अंदर धसे जो समंदर मखमाय का पूत लाखों दसेंगे तो कहे भाई भाई रिपु दुखदाई नहीं है सगाई वो विश्वासघाती पहले कहे भाई भाई रिपु दुखदाई नहीं है सगाई वो विश्वासघाती पण भुजा हिंद बल है मगज में अकल है हृदय नाही चल है हरि से संगाती भुजा हिंद बल है मगज में अकल है हृदय नाही चल है हरि के संगाती तो कहे कागचारन
कहें कागचारण जहां सत की धारण, गीता का उच्चारण विजय वहां वसेंगे, गीता का उच्चारण विजय वहां वसेंगे। हिमालय के अंदर धसो जो समंदर, महामाय का पूत लाखों दसे गए। हिमालय के अंदर धसे जो समंदर, आज महामाय का पूत लाखों दसेंगे। छप्पई धरनी हिंद धस्म से, हाक पो ब्रव दिश लगी, मन मन का मत भेद बिसरी घर घर सुर जगी। अंग बीज रस चमक दमक नैनों में ज्वाला, सरहद रक्षण का दसे जन काल कराला। कह काग प्रीति घर बार की बिसरी सुबट जब रन चले, ब्रह्मांड यंड यति स्तब्ध भो ममता माया कलमले। तजी देख का नेह मात पितु सेव विषादी, तजी पुत्र का प्यार तजी अविवाहित नारी। तजी कंठ बरमाल तजी मंडप ससुरन का, रखन हिंद की लाज लगे एक तार सुरन का। सत में ही हिंद का लाल हूं, मंत्र हिंद का मुख पढ़े। कह का गंगाज जमदूत सा भारस जाया रन चढ़े। कह का गंगाज जमदूत सा भारत जाया रन चढ़े। कह का गंगाज जमदूत सा भारत जाया रन चढ़े। कह का गंगाज जमदूत का भारत जाया रन चढ़े। ने भिरे युद्ध चौतरफ। पहले मैंने कहा है कि ये युद्ध सीमा हद का युद्ध नहीं है, ये तो घर घर का युद्ध है। उसका छप्पई है, बहरेंगे युद्ध चौतरफ, हिमालय गिरी में घर में यंत्र, घरों में कवि वृंद मजदूर, खेतर में व्यापारन में अधिक अन्न धन लह, कसर में महिला मंडल पुरुष मुसाफरी सकल छत्र में। कह काग भूल मत भेद को, हिम्मत ही नहीं हारी बो। जनता सुजीवन ज्वाहर मिलिंगन, युद्ध सकल मित जीत बो, युद्ध सकल मिल जीत बो। तीन वस्तु जब एक होती है तब युद्ध में विजय होता है। कौन कौन? जनता सुजीवन ज्वाहर मिली, अन युद्ध सकल बित जीत बो। जय हिंद।